Viewers, should there be a problem with truth and reconciliation? Think about it. I don't think so, and I'm sure you would say the same. The 1978 riots in Sambhal had led to deaths of many innocents. The details of the communal violence are documented. They're gory. The Yogi government has opened the Sambhal files and is likely to launch an investigation to deliver justice. The claim by the Chief Minister that 184 Hindus were killed in these riots underscores a painful chapter, one that has been largely obscured or sidelined in public discourse now. The violence had resulted in significant loss of life and property, and many claim that it led to a noticeable demographic shift in the area. We are talking about Sambhal. The aftermath of the riots saw many Hindu families fleeing their homes, with temples being locked and forgotten, symbolizing not just physical loss but also a cultural ambush. Viewers, this investigation or reprobe could potentially unearth new evidence, identify culprits who've gone unpunished, and provide closure to victims' families who waited for decades, 46 years to be precise. Viewers, the opposition has called this reinvestigation a provocation, and it just tells you about a broader narrative where every attempt at historical correction or investigation into communal violence is seen through the lens of political gains rather than justice. Viewers, this reaction exposes the ecosystem that often views such probes with skepticism, fearing perhaps that the narrative that they've constructed so far or maintained will crumble. Before we open this up, I want you to listen to the UP Chief Minister Yogi Adityanath and family member of Banwari Lal Goyal, who was brutally murdered. ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग उस समय ऐसे उन्मादी हो गए थे कि उस समय उनको बस जिसे कहना चाहिए था कि शैतान सवार हो गया था। देखिए, गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम। कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों का नरसंहार हुआ, कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान बेगुनाह जेलों के अंदर बंद रहे बरसों, उसके बाद जब बाहर आए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। 10-10, 12-12 साल जेल में रहने के बाद जब जेल ने उनको रिहा किया तो उनकी क्या हालत थी, ये भी सब पब्लिक को पता चलेगा। मगर क्यों देश को ले जाना चाहते हो आप? ये कि पूरी देश को 91 के एरा में ले जाना चाहते हैं, बाबरी एरा में। Let's quickly open this up. Rakesh Tripathi, spokesperson of the Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party. Ishtaran Bhandari, advocate, political analyst. Dr. Ranganathan needs no introduction. Tariq Khan, national spokesperson of the Samajwadi Party. Danish Qureshi, Vivek Srivastava, Lokesh Jindal, political analysts complete the panel. Vishnu Jain, he will be joining us any minute. But I want to start with Rakesh Tripathi. Rakesh Tripathi जी, ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, आप फिर से हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पोलराइजेशन का खेल कौन खेलता है ये देश जानता है। किसने इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति से इस देश को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है ये देश जानता है। 1978 के दंगों को ही देख लीजिए ना, पता चल जाएगा ना कि किसने दंगाइयों पर रहम करने का काम किया, जिसने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। मैंने 1978 में दंगा होता है, लोगों की जान जाती है और कोई दोषी नहीं पाया जाता है। ये बातें तो अपने आप स्पष्ट कर देती है ना कि किसने मजहबी गोलबंदी करने का काम किया है। क्या किसी के जख्मों पर मरहम लगाना मजहबी गोलबंदी है? क्या उनके पीड़ितों जो पीड़ित है उनके परिजनों का जो अब तक लंबा इंतजार है, क्या वो इंतजार खत्म नहीं होना चाहिए? आज जब संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आने लगे हैं तो इतिहास के बहुत सारे वो अध्याय भी खुल गए हैं, वो पन्ने भी खुल गए हैं जिसमें ढकने की कोशिश की गई थी और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अरे कितने लोगों को आपने दफन कर दिया और आज उन अपराधों की किसी को सजा तक नहीं मिली है। निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। जो साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, जो अपेक्षाएं हैं
सरकार का दायित्व है कि अपेक्षाओं को पूरा करे और जो पीड़ित है उनके साथ न्याय करे, जिन्होंने अपराध करने का काम किया उनको सजा मिलने का काम हो और जो पीड़ित है उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति कर रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम करने जैसा कुछ नहीं है। एक घृणित एक अपराध हुआ था, उस अपराध की निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, उसके पहलू तलाशे जाने चाहिए और जो कुछ भी ठीक किया जा सकता है उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। Tariq Khan, what is the problem if the Sambhal files are being reopened? First of all, BJP should say sorry for that riots in 1978 because BJP was in power at that time. जनता पार्टी की सरकार थी, इनके सारे बड़े नेता मंत्री थे, मैं गिनाता हूं कौन कौन था। केसरीनाथ त्रिपाठी उस सरकार में मंत्री थे। क्या बोला केसरीनाथ त्रिपाठी ने? कल्याण सिंह भी उसी सरकार में मंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता भी उसी सरकार में मंत्री थे, जो आगे चल के मुख्यमंत्री बने। 78 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 78 के बाद कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, कई बार इनकी सरकार आई। कब इनको याद आया? 78 का दंगा। और अगर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है मुजफ्फरनगर दंगे के लिए, तो 78 के जिम्मेदार ये हैं। माफी मांगी आज हाशिमपुरे के रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ने जवाब पेश दे किया, दीजिए। जांच हुई थी, जीरो जांच हुई। जवाब मुझे लगता है तारिक खान को भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए। इनकी पार्टी के नेता और तमाम इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स संविधान बांटते बहुत है, संविधान को पढ़ते नहीं है। संविधान पढ़ लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका क्या होती है, पुलिस पर कार्रवाई किसको करनी होती है, जांच किसको करनी होती है, ये सारी बातें तारिक खान को समझ में आ जाती। उत्तर प्रदेश में रामनिवास यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस समय अलायंस है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। और दूसरा, इनको यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मजहबी तुष्टीकरण के बड़े चैंपियन कांग्रेस हो जाए, इसलिए आगे बढ़कर के उड़ता हुआ तीर इन्होंने स्वयं ले लिया है और स्वीकार करना शुरू कर दिया कि नहीं ये मुजफ्फरनगर दंगे में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कैसा हुआ था। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालना राज्य सरकार का दायित्व होता है। ये क्या अलग से पाठ पढ़ाया जाए आपको? क्या रामनरेश यादव की भूमिका जो थी उसको लेकर के आपको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, आपको भी पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए निकलकर सामने आना चाहिए। लेकिन कैसे आएंगे आप? तो संभल के पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं, जो कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहते, पत्थर से आदेश बदलना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आज जिनको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेल भेजा है, जेल में जाकर के उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो आप तो अराजक तत्वों के साथ तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं अराजक तत्वों में आपको वोट बैंक दिखता है, आपकी मजहबी गोलबंदी दिखती है। राकेश जी, आपने जवाब दे दिया उसका। विष्णु जैन इज नाउ जॉइनिंग अस। विष्णु जैन जी, you know, we began with Rakesh Tripathi of the BJP and Tariq Khan of the Samajwadi Party. Samajwadi Party, in fact, opposition ही ये बोल रही है कि this is an attempt to polarize. आप communal tension फिर से फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो पुरानी केस अब हो गई, अब क्या जरूरत? So people who don't have the context of what happened in Sambhal in 1978, I want you to quickly tell them what See, a very important point is that on 29th of March 1978, riots broke out in Sambhal और 29 मार्च 1978 को 184 हिंदूज को निर्मम हत्या की गई थी, जलाया गया था। और केस टाइम नंबर बता दे रहा हूं, केस टाइम नंबर 86, 88, 89, 104, 105, 110, 113, 118, 123, 131, 241. These many case crime numbers were registered against the culprits, against the accused. And you will be shocked to know that out of 1100 persons who were there in this entire investigation, only 2 persons were convicted. Only 2. And now today, when the state government has taken a decision, आज जब राज्य सरकार ये निर्णय ले रही है कि इन लोगों को दोबारा न्याय मिले, इनके लिए दोबारा जांच हो, अगर किसी को गलत छोड़ा गया है तो उसके खिलाफ अपील फाइल की जाए, तो इसमें किस तरह की त्रुटि है? मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे, 1984 में जब एंटी सिख राइट्स हुए थे, 10 कमीशन अपॉइंट किए गए और उनको न्याय नहीं मिला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और अब उनको न्याय मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे 1984 के जो एंटी सिख राइट्स थे उसकी जांच क्यों होनी चाहिए? जो कश्मीरी पंडित की निर्मम हत्या की गई कश्मीर वैली में 1989 से आज तक उनको जांच नहीं मिली, और वो हत्या नहीं थी, वो एक रिलीजियस एथनिक क्लेंसिंग थी। पूरे धर्म और समाज को वहां से इरेडिकेट करने की कोशिश की गई। तो अगर कभी कोई सरकार उनको न्याय देने के लिए आगे आती है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब प्रॉब्लम ये है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग मरते रहे, कटते रहे, तो तब इनके सारे रूल ऑफ लॉ, बड़े बड़े सिद्धांत चले जाते हैं। पर अगर कोई बात गलत हो जाए
तो ये सब सामने आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि आप कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, हाउ मच डबल स्टैंडर्ड्स यू विल हैव। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आज संभल में बिजली चोरी हो रही है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज वहां पर मंदिर बंद है, जहां पे लोग पूजा नहीं कर पा रहे, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? 2012 तक उस कुएं की पूजा होती थी, मेरे पास एविडेंस है, फोटोग्राफ है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा पा रहा है, उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? वहां पर जो जिस तरह से अराजकता का गढ़ है, उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? आपने जिस तरह से बनवारी लाल उनके परिवार की हत्या कर दी, जला दिया टायरों पे, उसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई आवाज रेस करे तो कहते हैं अगर खोदोगे तो सौहार्द खोदोगे। अरे क्या बात कर रहे हो सर आप अगर संविधान के मूल्यों पर विश्वास करते हो, संवैधानिक प्रिंसिपल्स पर विश्वास करते हो, तो राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है। नहीं, राइट टू इक्वालिटी छोड़ दीजिए विष्णु जी, ये तो संभलेगा नहीं उनसे। सीधा ही बता दें कि दिक्कत क्या है अगर जस्टिस के लिए कैंपेन हो रहा है या लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए। ये तो कोर्ट में होगा, जो भी होगा। ये तो जय संविधान और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। विवेक श्रीवास्तव, आई विल कम टू यू सर, काम डाउन। हाथ दर्द होने लगेंगे, हाथ नीचे रख लीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू ब्लॉकिंग दिस अटेम्प्ट टू डिलीवर जस्टिस? देखिए, सबसे पहले बात है जांच, 78 के दंगों की जांच, बाकी सारी चीजों की, बहुत सारी चीजों की बात हमारे को पैनलिस्ट भाई साहब ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारी जांचों के लिए मांग की बात रखी जाती है, तब फिर मोदी सरकार आगे पीछे होने लगती है। अब हम उनको ये पूछ लेते हैं कि पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए, तो जवाब नहीं देते। हम उनसे ये पूछते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने अपने मित्रों को दे दिए, तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे तो बेहिसाब चीजें, सीएजी की रिपोर्ट एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। मैं एक मिनट दानिश कुरैशी जी, मैं बता देता हूं। वहां पे 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है और उसको आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। इसकी जांच करो, उसकी, सबकी जांच करवा लीजिए ना, लेकिन इसको क्यों रोक रहे हैं? तो आप बोलिए कि इसकी भी जांच नहीं रुकनी चाहिए और बाकी कर लीजिए। इस तरह, यू नो व्हाट इज दिस माइंडसेट? Pranesh, this mindset is the one which says that doing justice is the problem. मंदिर तोड़ना प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर रिस्टोर प्रॉब्लम है। लोगों को करना प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जस्टिस मांगना प्रॉब्लम है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जस्टिस मांगना प्रॉब्लम है। सो दिस माइंडसेट व्हिच सेज दैट एनी टाइम यू गो फॉर जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन देयर इज समहाउ अ कॉन्स्पिरेसी हैपनिंग, and the denial from 1978 to Muzaffarnagar, you know what happened, where the police was busy looking for buffaloes of Azam Khan but not protecting the people of Uttar Pradesh, or in Kashmir where a massive exodus and genocide occurred and everybody wanted to deny it. Till recently it was brought to light in a manner which could not be denied. So this entire open, not only here, see London, where they are saying people of Pakistani origin did. It happened 10 years ago. So why are these grooming gangs being talked about? The problem is in the mindset of the people committing crimes and now expecting that justice will not be done. The question should be, why is justice taking so long? Why people who were butchered and genocide committed did not get justice? The question cannot be why the file is being opened now. The question should be why the file was not opened that time. Why only 17 official records recorded, whereas contemporary records and eyewitness testimonies of people say more than 100 people were killed. Those are the questions that need to be answered, not why justice is being done. विवेक श्रीवास्तव, देखिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए, ये बेकार की बातें हैं। गड़े मुर्दे आप उखाड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लड़ाइयां करवानी है कम्युनिटीज में। किससे लड़ाई हो जाएगी? कौन करेगा लड़ाई? Go back to 1947. विवेक श्रीवास्तव, लड़ाई करेगा कौन? Butchered in Pakistan and Muslims लड़ाई कौन करेगा? आइए, विवेक श्रीवास्तव, लड़ाई कौन करेगा? सर सुन लीजिए ना। नहीं, बताइए तो, लड़ाई कौन करेगा? आप सुनिए सर, लड़ाई कौन करेगा क्या होता है? आप भड़का रहे हैं लोगों को। किसको भड़का रहे हैं? बताओ तो। योगी आदित्यनाथ लोगों को भड़काना चाहते हैं। आप 6 या 7 मुख्यमंत्री आप बंदूक लेके जाएंगे लड़ने बाहर? आप मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। एक आदमी बोले, आप, अरे बाबा, एक आदमी बोले ना, या आप बोलिए या मैं बोलूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बोलना तो आप ही को है। 6 से 7 मुख्यमंत्री बीजेपी के हुए हैं प्रणेश भाई, है ना? हाँ, सुन लीजिए अब आप पहले। 6 से 7 मुख्यमंत्री बीजेपी के हुए हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई सर आज तक।
उसमें राजनाथ सिंह भी थे जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप राम नरेश गुप्ता भी थे, आपके जो है कल्याण सिंह थे, एंड देयर हैव बीन सो मेनी ऑफ देम, बिकॉज सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने एक इंक्वायरी करी थी, जो रिजल्ट निकले थे वो हुए, उसके बाद किसी ना किसी तरीके से बिटर चीजों को भुलाया जाता है पंजाब प्रॉब्लम के अंदर। और सुनिए, अभी विष्णु जैन मेरे साथ एक और जगह पे थे, आप मुझे बताइए 3 से 4 साल पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सोमनाथ मंदिर को खुदवाया गया, नीचे से 3 मंजिला बौद्ध विहार निकला। क्या करेंगे उसके बारे में विश्लेषण? 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, हम हिंदुओं ने तोड़ा, करेंगे विश्लेषण? कौन ढूंढेगा? कहां तक जाएंगे? तोड़ा मतलब आप तो यहां मुसलमानों को मारा, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, देखिए दिस इज द प्रॉब्लम, यू गो ऑफ स्क्रिप्ट। आई डोंट नो कौन सा स्क्रिप्ट है ये, क्या है, या आप तैयारी में कमी है, आज भी कमी है। अब वी हैड सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट विष्णु जी, 1 मिनट। डॉक्टर रंगनाथन तब से सुन रहे हैं, लेकिन अब आई थिंक मैंने सोचा था उनको लास्ट में लाऊंगा लोकेश के भी बाद, लेकिन अब लाना पड़ेगा प्रोफेसर साहब को, बिकॉज 8 स्टूडेंट हमारे बिल्कुल ही बहक रहे हैं। Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists. Before I say what I have come to say, can I please request if you give me 15 seconds, because my good friend Vivek has said something so egregious कि इन्होंने कहा है कि ये जो फैमिली ने प्लीड किया था गवर्नमेंट से रिपीटेडली, 46 साल हो गए हैं जस्टिस के लिए, संभल फाइल रीओपन करिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल रीओपन नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1984 के जो दंगे हुए थे जिसमें सिखों का नरसंहार हुआ था, उनका इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन और रीओपनिंग होनी चाहिए फाइल्स की? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, जस्टिस हो चुका है। अब आप सिर्फ झगड़ा करवाने की बात कर रहे हैं, आप झगड़ा करवाना चाहते हैं, आपकी नियत में जस्टिस है ही नहीं ना, आपका सिखों में 1984 की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई है, आंसर दैट। You are not interested in justice. You are interested in giving bad name to Congress. That's all. How are you? One minute. Vivek Srivastava, 1 minute. Bad name to Congress. Bad name to Congress. That is more important than justice itself. देखिए, expose हो गया विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, what do you know, so many people write कि आप विवेक श्रीवास्तव क्या बोलते हैं, फिर भी सर, 1 minute. I risk their love for the show. उसके बाद भी आप आते हैं, उसके बाद then you say something like this. So bad name for Congress or good name for Congress is more important than justice for these people. Pranesh, can I please now, because he's taken enough time and embarrassed himself. I don't know, he is on mute. नहीं हूं, लेकिन नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अगर आप बार बार सिख दंगों को, हिंदू मुसलमान दंगों को, चाहे गुजरात के दंगे हो, आप जबरदस्ती खींच करके उसके डिस्कशन करके, ओवर एनालिसिस करके, लेट डॉक्टर रंगनाथन कंप्लीट हिज पॉइंट। ये देश के कम्युनल हार्मोनी के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर रंगनाथन, 1984 में सिख्स को जस्टिस नहीं मिला, ये कह रहे हैं जबरदस्ती खींच रहे हो, वो दंगों को निकाल रहे हो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। अभी तो मैं जो कम्युनिस्ट ने किया था मारी झापी मैसेकर, उस पे नहीं आया, 10,000 दलित्स को मारा। कहां गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो आप? But anyway, Pranesh, it is pointless exercise to rebut my good friend Vivek. Look, I want to come back to this. It's a very serious topic. Just when one thought that the cries of Hindus to get justice were cries in the wilderness, comes a light, albeit flickering, at the end of this long secular tunnel that 1 billion Hindus have been forced inside. One must thank not only Yogi Adityanath, but also the journalist Swati Goel Sharma and her peerless investigation for the reopening of the Sambhal files. The year was 1978. 184 Hindus were murdered in cold blood in Sambhal, Pranesh. Scores were burnt alive by Muslim mobs. One Hindu, Banwari Lal, begged to be shot, but he was hacked to death instead. Many were butchered like animals. 46 years the families have waited for justice. Many have died waiting. But Pranesh, this is a country where one hopes for death to rid us of our remembrances. Wait a little longer, says the state, just a little longer. This is a country, Pranesh, where Hindus to demand a semblance of justice is perceived as communal and bigoted.
where one felt lost for hope, wondering whether the fabled arc of moral universe would ever bend towards justice for Hindus. This is a country where the Supreme Court refused to open not only the Sambal files, but also the Kashmir file, saying too much time had elapsed. And so it doesn't make sense to investigate the crimes that happened during the Kashmiri Hindu genocide. Sambal pogrom, Kashmiri Hindu genocide, the Mari Jhapi massacre where 10,000 Dalits were murdered in cold blood by communists in Bengal. How many files, Pranesh, how many files lie unopened, gathering dust inside those almiras called appeasement? But then again, this is a country where appeasement is no longer welfare. Appeasement is now warfare. Warfare is when you enact laws and policies and acts that constitutionally and legally favor one community and discriminate against the other community. So you have the Waqf Act. So you have the conjunction of RT with 93rd Amendment. You have the state prohibiting Hindus to even approach. बकवास, सब बकवास, सब बकवास. You know, this is what बकवास. it has come down to. ये सुन You लो, have no बकवास. points, ये valid rhetorics जो है ना, points to Vivek rebut. Srivastava, stop doing, हाँ. 1 minute. ये मार्शल आर्ट्स बंद कीजिए आप. पॉइंट में रट्टे मार के नहीं नहीं, आता, एक सुन मिनट, लीजिए. एक मिनट. आपका रट्टे मार के क्या होता है? रट्टे मार के क्या होता गुजरात के ऊपर आप है? बोलेंगे रट्टे नहीं मार कभी. के क्या होता है? People Do you know have what we are died. discussing, Vivek Srivastava? Families You are exposing yourself once again. You do that every night. मत कीजिए ऐसे. कोई क्या, किस बात पे बात हो रही है? सेंसिटिव इशू है, उस पे आप ऐसे कर रहे हैं. इसका क्या मतलब है? No, what is this? ये क्या मतलब? ये सिंबल क्या है? ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दंगे भड़के. अगर कोर्ट किसी चीज में इंक्वायरी ऑर्डर करती है, उससे दंगे भड़कते हैं. गलत है. आप म्यूट कर देते हैं ना, तो थोड़ा सिंबॉलिक होना पड़ता है. तो आप म्यूट रहिए. आप एक काम कीजिए, पूरे शो में ऐसे करते रहिए. के मुख्यमंत्री हुए हैं आनंद रंगनाथन, उनको भी बोले. आप बोलिए कि वो थे मुख्यमंत्री भाजपा के, उन्होंने सच को दबाया. है हिम्मत आनंद रंगनाथन में? Let him गुजरात answer. में दंगे हुए, मुसलमान मारे गए. सुन तो लीजिए विवेक श्रीवास्तव, फिर से म्यूट करना पड़ेगा. म्यूट करना पड़ेगा सर. म्यूट इसीलिए करते हैं ताकि सब अपनी अपनी बात कर पाए. विवेक श्रीवास्तव, काम डाउन. डॉक्टर रंगनाथन. You know, it is pointless to rebut Vivek, but still I'll do it in the interest of your viewers. An SIT commission constituted by the Supreme Court investigated the Gujarat riots and Narendra Modi. A clean chit was given. There were riots where Hindus and Muslims both were killed, where Hindus and Muslims both were perpetrators. But I want to ask Vivek, will he say that 10,000 Dalits who were butchered in broad daylight by the communists in Bengal, was that a fact or not? You are going to say it was a figment of imagination because you are a liar. Your whole आप सुनिए, Mari Jhapi massacre, 10,000 Dalits, सुनिए आप मेरे से. 10,000 Dalits were massacred by communists. Were they or were they not massacred? नहीं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना विवेक श्रीवास्तव. ये क्या कर रहे हैं आप? दंगे फैलाते ही हैं टीवी आप पे. जवाब दे दीजिए ना. आप जवाब दीजिए. आपको क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर ये हुआ था कि नहीं मैसेकर? सुनिए, मारी झापी मैसेकर हुआ था कि नहीं हुआ था? सुन लीजिए सर, कुछ नहीं मारी हुआ. झापी बकवास मैसेकर कुछ सुनिए नहीं मेरी हुआ बात. था. I think, you know, no, 1 minute. You know, this can't be on. Sorry, I'm sorry. Vivek Srivastava, sir, today I'm sorry to say you've crossed the line today. No, 1 minute. You've crossed the line today, sir. Vivek Srivastava, आज आपको जाना पड़ेगा. डिबेट से जुदा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा. अब म्यूट रहेंगे आप. अब आपको जो करना है ऐसे ऐसे आप करते रहिए. ये this is no way to talk about a subject as sensitive as this. Lokesh, why should a quest for justice be blocked? Well, justice is for everyone. Why such a silence for Jiribam massacre in Manipur? Weren't they Indian citizens? The chief minister only came out with a sorry. Only sorry, Pranesh. The chief minister had stated that Article 355 had been imposed in Manipur. Despite that, in November, there was a Jiribam massacre where innocent children, women, they were killed. It's in 2024. And now the chief minister wants to say that they'll be reopening a case in 1978. And what does the SP of Sambal say? The SP of Sambal has officially stated that it's some misleading information. No such investigation, no such reopening is taking place. Pradesh, I want to ask, are we really concerned with justice or Lokesh, not? 1 minute. If you're saying no such investigation is taking place, फिर outrage किस बात का है? Why are people reacting?
क्यों बोल रहे हैं कि ये कम्युनली पोलराइज कर रहे हैं? There were certain information which were sought by the government. No, and forget the that. administration- Should there be justice? Yes or no? सिंपल क्वेश्चन है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी बोलते हैं हाथ करेगा न्याय, हाथ उठा के बोलिए हाँ न्याय होना चाहिए. What about Jiribam? What about Manipur? Why are you so Who's saying silent no? about Manipur? But who is saying so no? Why is Who it is saying that no? Everybody is silent. I mean, People it is went to something court. which is happening now. People went to court. People have gone No, to so court in, you are some of these expecting cases. the court to do the justice. You are expecting the court to protect the lives of the people. Why? You are expecting the court to impose law and order there. There is a unified command in Manipur. A retired IPS officer is heading the Assam Rifles. So how does entire it? police No. administration, What are you the trying to Ministry say? of Home Affairs What are you has trying no to say? clue about it. No, People what are you are trying to dying say? day and night. I am trying to say that when you are talking about justice, Yeah. you better bring the central government and the government of Manipur. Not also, just the central held government. responsible for The Manipur government is, no, I am telling you, You the are chief simply minister, 1 minute, sir, the one chief minister there responsibility. has utterly failed. I am telling you. Now you say what happened in 1984 was a failure. You know of whom, Absolutely and there should be was. justice. आप बताइए, बोलिए. The state, Show the courage of conviction. Absolutely. No innocent should ever lose his life. No. Don't But- beat around the but bush are now. we- Now are we say supposed the to Sikhs hide deserve behind- justice for 1984 massacre. every आप बोलिए. people- Vivek every Srivastava just say this. people The deserve- Sikhs deserve justice for 1984 massacre. The people of Sambhal deserve justice for 1978 riots. बोलिए. Every Indian Indian justice. No. देखिए विष्णु जैन. Why are you limiting देखिए yourself विष्णु to जैन what's- अभी ये जस्टिस की बात कर रहे थे. अब जब इनसे सीधा सवाल पूछा गया, मैं आपसे एक लार्जर सवाल पूछता हूं विष्णु जी, ये क्या माइंडसेट है, चाहे वो संभल सर्वे हो या संभल राइटिंग का ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज दिस माइंडसेट दैट अपोजेस एवरी प्रोब? देखिए प्रणेश भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां जहां, और मैं उस दौर से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब कोई दंगा होता था और अगर हिंदू मारा जाता था तो बोला जाता था, रिपोर्टिंग होती थी कि दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ. मैं तो आज आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपको नमस्कार करना चाहता हूं कि आप ओपनली ये बात बोल पा रहे हैं और थैंकफुली हम इस एरा में रह रहे हैं कि हम चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं कि 184 हिंदूज को मारा गया. क्योंकि हमने तो वो भी दौर देखा है कि हिंदू मारे गए, ये बात भी दबा दी जाए. कश्मीर में किस तरह से भीषण नरसंहार हुआ, रिलीजियस क्लेंसिंग हुई, उसके ऊपर बात नहीं की जाती. आज तक जस्टिस नहीं मिला है. तो ये वही माइंडसेट है जो कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है. ये वही माइंडसेट है जो वक्फ एक्ट 1995 को सपोर्ट करता है. वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से पूरे देश का, एक्चुअली प्रणेश भाई पता है बात क्या है, हम और आप सब वक्फ की जमीन पे हैं, हम और आप सब इनके रहमो करम पे हैं, हम और आप सब बहुत बड़े दिक्कत में है क्योंकि ये लोग ने बहुत बड़ा हम पे अनुकंपा की है कि हम इनको रेंट नहीं दे रहे. तो वक्फ एक्ट 1995 सही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सही है. इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंसक है. इस देश का जो हिंदू है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए. सनातन धर्म के बारे में जितनी बातें बोलो, हेट स्पीच वहीं पे दिखती है. पूरा का पूरा एक सेटअप डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाया गया है. और जैसे हिंदू समाज के लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं तो बोला जाता है कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, हेट स्पीच की जा रही है. तो प्रणेश भाई, आज दुख और दर्द ये है कि संभल में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को कैसे कब्जा कर लिया, जहां पे एएसआई अंदर नहीं जा पा रही है. ये आवाज उठाने की हिम्मत कैसे की? संभल के अंदर 46 ईयर से, 46 साल से एक मंदिर बंद था, संबलेश्वर महादेव, उसको खोलने की हिम्मत कैसे की? संभल में जो बिजली चोरी हो रही थी उसको पकड़ने की हिम्मत कैसे की? संभल को पूरा का पूरा संभल वक्फ घोषित कर दिया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कैसे की? जो कुंभ हो रहा है वो सब वक्फ में हो रहा है, ये आवाज उठाने की कैसी कोशिश की? और मैं तो वो दौर भी याद दिलाना चाहता हूं आपको प्रणेश भाई, जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार 30 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ रही थी, रिहा कर रही थी, और पता है उस ऑर्डर में क्या लिखा था? 20 इनोसेंट मुस्लिम यूथ के खिलाफ केस विड्रॉ कर रहे हैं. और ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं, उन 20 में से 19 लोगों को अभी सजा हो चुकी है.
सजा हो चुकी है, जिनको ये 2013 में छोड़ लेते। let's get a response. मोचन पे लखनऊ की सिविल कोर्ट में Okay. यहाँ हर जगह ब्लास्ट किए। Dr. Ranganathan, what do you have? Pranesh, you can tell this to Vivek, who was saying Gade Murde Mat Ukhado. This is the CPI who wanted the Hashimpura massacre reopened. That happened in 1987 when Muslims were massacred. So for Muslims, when they were massacred, they want the case reopened. But some panelists out here, including Vivek Srivastav, says कि when Hindus are massacred, गड़े मुर्दे उखाड़ देंगे. Look at the shameless hypocrites. Pol Pot and Mao lover से एक पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कांग्रेस को बदनाम मत करो. ये देखिए, CPI wanted Hashimpura case reopened because he said Congress is the culprit. अब विवेक अगर हिम्मत है, अगर आंखें हैं तो देख लो, कान है तो सुन लो, और दिमाग है नहीं, सॉरी दिमाग नहीं है, अगर हिम्मत है तो इसको क्रिटिसाइज करो, रीओपनिंग को क्रिटिसाइज करो, 1987 के हाशिमपुरा मैसेकर को क्रिटिसाइज करो, रीओपनिंग को. अब आप सुनिए पहले. अरे भैया सुन लो डॉक्टर रंगनाथन सुन लीजिए. बहुत लड़ाई झगड़ा फैला लिया, आप सुन लीजिए. एक समय सीमा होती है किसी भी राइट को रीइन्वेस्टिगेट करने की. 1978 के क्या तथ्य आप लेकर के आएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, 1947 पे चले जाओ. दूसरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1984 की लॉ सुनिए सर पहले. भंडारी झूठ मत बोलो. It is not the question of justice. It is the question of malified intentions behind your inquiry, which could be Vivek biased. Srivastav, how are you? You know, do you have 1 minute? Vivek Srivastav, 1 minute. Do you have a tool? No. Do you have a tool that determines malified intention, sir? Who are you to judge? There is a process. Sir. You know, the country runs on democracy. 1 minute. Because the agenda of the Sangh I'll tell you. Yeah, I'll tell you. The Sangh Parivar has malified intentions. जितना हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, वोट पोलराइज होता है, इस फेक हिंदुत्व गैंग को फायदा होता है. और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी नॉलेज के लिए, जिसमें डॉक्टर रंगनाथन भी है, जाने अनजाने में ये भी इस एजेंडा में शामिल हो जाते हैं. ये भी शामिल हो जाते हैं. You're still not answering the question. विवेक श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए. देखिए, मैं बता रहा हूं, दो तीन लॉयर्स हैं हमारे पास पैनल में. विष्णु जैन, ईस्टरन. मैं बता रहा हूं, आप ये बता दीजिए कि ये कौन सा, आप लोग तो संविधान में मानते हैं. सोमनाथ मंदिर इनसे पूछिए. नहीं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं. आपने जो कहा कि ये समय सीमा होना, ये कौन से, सर 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये कौन सा समय है, कौन सी सीमा है, और कौन से पेज में है, और कौन सा किताब है, ये बता दीजिए. बस ये बता दीजिए. आप डोंट डिफ्लेक्ट. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. आप बता दीजिए, लोगों को भी लगेगा कि विवेक श्रीवास्तव एकदम पढ़ के आते हैं. I'll tell you, sir. I will tell you, sir. 1978 and today, the time period is too much. I feel there was no internet, no digital records. Nothing was available. We do not know where the records are in the courts. It will be very, and the people, many of them should not be living. वो कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो क्वेश्चनेबल है. अगर 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल की बात करो, विवेक श्रीवास्तव, वही तो प्रॉब्लम है. अगर रिकॉर्ड है, विष्णु जैन बोल रहे रिकॉर्ड है. विष्णु जैन, सब रिकॉर्ड है विवेक जी. और दूसरी बात, और आपने कहा टाइम लिमिट होती है. क्या सारे लोग बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए. विवेक श्रीवास्तव, अब मैं टाइम्स नाउ के चैनल पे लाकर तो आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा नहीं. पॉइंट नंबर 1, इनसे पूछिए, इन्होंने आपके चैनल पे झूठ कैसे बोला कि देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग इन्वेस्टिगेशन. कौन सा लॉ है? मैं चुप हो जाऊंगा, डिबेट अभी छोड़ के माफी मांग के जाऊंगा. ये बताए कि देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग इन्वेस्टिगेशन. तो 1947 में चलते हैं ना फिर सर. आज चलिए ना, किसको प्रॉब्लम है? चलिए. अरे चलिए ना भाई, किसने बोला आपको? कहां प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? वहां पे विवेक श्रीवास्तव, नो, मैं एक बात ले जाओ. व्हाट इज देयर टू हाइड? डर किस बात का है? और आप जो लोग बोल रहे थे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, मारपीट, कौन से लोग बता दीजिए ना, उनके बारे में बता दीजिए. There is nothing to hide. Your investigation will not be proper. Pranesh, there is nothing to hide. The investigation cannot be done properly now. That the time will decide. It is common Whether sense. investigation will There be was no proper. internet, there were no scanners, there were no printers. Nothing has been digitized. आधे लोग मर चुके हैं. Victims के परिवार वाले, मरने वाले के परिवार वाले. काम डाउन. विवेक श्रीवास्तव, 1 मिनट सर, रुक जाइए. मैं आपको पढ़ के, 1 मिनट. विष्णु जी, 1 मिनट. डॉक्टर रंगनाथन, आई एम रीडिंग अ कोट फ्रॉम CPI MP from West Bengal's Diamond Harbour. The name is Jyotirmoy Basu. Date is April 4th, 1978. He says 9 persons were shot dead. Women were raped by policemen. People have been beaten to death.
Parliament cannot be a silent spectator to this. There should be justice. ये आप ही लोग justice बोल रहे थे. Whatever is there will come out. Why are you shying away from a probe? बोल रहे हैं ना सर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1987 का विवेक यार कम ऑन यू जस्ट हॉगिंग ऑल द टाइम विवेक इट्स अनफेयर औरों को बोलने दो यार विवेक प्लीज प्रणेश लुक एट द गोल पोस्ट शिफ्टिंग ऑफ विवेक श्रीवास्तव जब ये पकड़े गए कि सीपीआईएम वांटेड हाशिमपुरा मैसेकर रीओपन तब कह रहे हैं कि टाइम लिमिट होती है नंबर 1 दो यहां पे दिग्गज लॉयर्स बैठे हैं ईश्वरन और विष्णु उन्होंने विवेक ऐसे नहीं बोल No, 1 minute. Only Dr. Ranganathan speaks. Anirudh. Yeah, so there are two eminent lawyers on this panel, possibly more. I beg your pardon. There are three, at least three I can see out here. Actually ज्यादा भी हो सकता है मुझे पता नहीं 4-5 ही है मुझे लग रहा है आप मुझे माफ कीजिएगा. All of them confirm there is no statute of limitation as far as criminal offences in riots are concerned. That is the reason why 1984 is still being investigated. Supreme Court ने SIT investigation बिठाई है और ये कह रहे हैं कि 1978 में डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं थे 1987 में कौन सा डिजिटल रिकॉर्ड था जब ये हाशिमपुरा मैसेकर को रीओपन करने के लिए कह रहे हैं नहीं ये बोल रहे हैं इंटरनेट नहीं थी तो जस्टिस नहीं हो सकती है ये दिस इज 1987 में कौन सा इंटरनेट था कहां से कम्युनिस्ट इंटरनेट ले आए और दूसरी बात सीधी सी बात है आप में चलो ना आप वहां के रिकॉर्ड भी अरे किसको किसने 1949 चलते हैं बट क्या प्रॉब्लम है जहां तक जाना है जाइए ना व्हाई शाय अवे फ्रॉम ट्रूथ ईस्टरन अरे भाई 1947 okay one person at a time Anirudh Eastern speaking Pranesh Vivek Pranesh the problem is one can try to teach Vivek Srivastava law but how does one teach him common sense there is no statute of limitation in criminal law for heinous offenses and we are talking about a genocide rape murder happening which happened in Sambhal so I do not know is he a North Korean that he can have a kangaroo court and say that I believe that it should not be investigated because certain time has elapsed. Does the nation run by his belief, his viewpoints, how he feels sitting in an AC studio, or does it work as per the criminal law? Okay. Does it work as per the constitution? The very simple point is there. Anybody who is trying to shy away from investigation in a genocide case has a lot to answer, and justice needs every person to get investigated and punished who was a party to that genocide. well said I don't think there is any dispute or there should be any dispute on people demanding justice or getting justice. I thank, some of the panelists for joining us on debate number 1. Let's move on.